اقبال خٹک کی جانب سے السلام علیکم ناظرین، حال ہی میں حسن ابدال میں پہاڑ کی چوٹی پر موجود بیٹھک شریف سخی زندہ پیر بابا ولی قندھاری کے ساتھ ایک عالی شان مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹھک پر حاضری دینے والے زائرین اور نمازیوں کے لیے 30,000 لیٹر سے زائد کیپیسٹی والے واٹر ٹینک کی بھی تعمیر کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس نئی مسجد کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس مسجد میں تقریباً 1000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہ مسجد کس طرح بنی اور دیگر معلومات کے لیے تفصیل حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری شمشاد صاحب اور گلزیب خان صاحب۔ ہم اس مسجد کے بارے میں ان سے معلومات لیں گے کہ اس مسجد کو کیسے بنایا گیا ہے۔ جی گلزیب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتھے جتھے بھی لوگ سننے میں انہوں نے خدمت اسلام پیش کرنے ہیں۔ خٹک صاحب تو سب تو پہلے شکریہ، ٹھیک ہے جناب۔ تے گل اس طرح خٹک صاحب ہی کوئی اصل 27 سالہ منصوبہ ہے مسجد نا، 27 سال تو اسی یہ سوچنے پہ ہیں مسجد کے بارے۔ ایک دفعہ دو دفعہ دعا بھی ایسا کی تھی بھائی اج کام لانے ہیں، کل کام لانے ہیں۔ اس تو بعد ایک دفعہ چادران والا سامان بھی ہے لوہے والا، وہ بھی چلا گیا ہے، منظوری نہیں گئی۔ اللہ پاک کرو مہربانی کیتے ہیں، ایسی سارے دوست مل کے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک اپنی کریمی مہربانی فضل نال حاجی شمشاد خان نے انتخاب کیا اس کمے سے، یہ ایسا بھی نال کہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 6 مہینے تقریباً اور 3 دن لگاتار محنت نال 25 جولائی اساں یہ کام شروع کیتا ہے جی، تو 29 جنوری اساں پہلا جمعہ پڑھایا تھے، 25 جولائی 2020 جی جی، اور 29 جنوری کو اس کا افتتاح کیا ہے جمعے والے دن 2021 میں۔ اس میں لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بہت زیادہ، ان پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے حاجی شمشاد خان پہ، اور انہوں نے اپنا بھی تقریباً 27-28 لاکھ روپیہ لگایا ہے اللہ کے گھر کے کام میں، ٹھیک ہے جی۔ بس اور ہم اس پہ اتنا بولنا نہیں چاہتے تھے، اتنا اس کی خود نمائش نہیں کرنا چاہتے جی، نمائش نہیں کرنا۔ آپ آ گئے ہیں، آپ کو یہ اس لیے بتا رہے ہیں بھائی جو کچھ ہوا ہے تقریباً ابھی تک ہم نے کوئی اسٹیمیٹ بھی نہیں لگایا کہ جو لوگ بتا رہے ہیں نا، کسی کو کچھ نہیں پتہ، ہمارے پاس موجود ہے، خدا کے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں، ریکارڈ رکھا ہوا ہے، وہ ریکارڈ ہم عنقریب آپ کو بھی دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس سب لوگوں کو بھی بتائیں گے اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک یہ کاوش حاجی شمشاد خان کی، حاجی شفیق صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور جتنے دوست مہربانوں نے اس میں حصہ لیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی جو یہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو منتخب کیا ہے، اس کا اللہ پاک ہم کو جو اجر لازمی ہے اس کا گھر بنایا ہے، اس نے ہم لوگوں کو منتخب کیا ہے، اس کا اجر ہم اپنے والدین کے علاوہ ہمارے دوست پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کسی کی والدہ رضا ہو گئی ہے، کسی کا والد رضا ہو گیا ہے، ہم یہ ان کو گفٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول کرے جی۔ بہت شکریہ سر۔ ابھی چودھری شمشاد صاحب سے ہم تاثرات لیتے ہیں کہ اس کٹھن سفر میں ان کو ظاہر ہے مشکلات کا سامنا بھی ہوا ہوگا، اور بہت سارے لوگوں نے ان کا ہاتھ بھی بٹایا ہوگا، اور ظاہر ہے ان کا اپنا پسینہ تو اس میں شامل ہی ہے۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اقبال خٹک صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ممنون ہیں، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے نکال کے وقت ہمارے پاس ادھر اوپر تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر خیر عطا فرمائے۔ خٹک صاحب، یہ مسجد تقریباً کافی عرصے سے، تقریباً زمانے سے ادھر مسجد نہیں تھی۔ مسجد کا ادھر بہت اشد ضرورت تھی، وضو کی جگہ، جی کئی سو سال سے ادھر مسجد نہیں تھی، وضو کی جگہ نہیں تھی، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، نماز پڑھنے والا بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بس اللہ پاک کی کرم نوازی ہوئی ہے، ادھر بھائی محمد اسلم خان نے آگے ڈیرا لگایا ہے تقریباً 2000 2000 میں۔ انہوں نے اس جگہ کو ہموار کیا، رات دن انہوں نے محنت کی تھی، اپنے یار دوست ملنگ لگا کے اس زمین کو ہموار کرنے میں سب سے مین کردار بھائی محمد اسلم خان کا ہے، جنہوں نے ادھر رات دن بیٹھ کے لنگر چلایا، اور اس کے بعد انہوں نے محنت کی، اپنی جان مال اولاد لگا کے۔ اللہ کی کرم نوازی سے آج ہم جدھر کھڑے ہیں، یہ سب ان کی کاوش ہے۔ یہ سب پہاڑ تھا، بڑے بڑے چٹانی تھی، بڑے بڑے پتھر تھے، سب انہوں نے ملنگ لگا کے توڑ تاڑ کے، یہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے۔ چاچا رشید ہو گئے، ملک سہیل، بخشیش بھائی ہو گئے،
परवेज़ हो गया, काफ़ी लोगों ने इधर मेहनत की है, जो पहाड़ को काट के पहले उन्होंने हमवार की है। तो फिर उसके बाद अल्लाह पाक की करमनवाजी हुई है, सखी की निगाह पड़ी हम पे, अल्लाह की मेहरबानी हुई है, हमको खिदमत का मौका मिला और ये हमने इसको 5 महीने में हमने नमाज शुरू कर दी थी जी। और उसके बाद 6 महीने 3 दिन के बाद हमने जुम्मा भी पढ़ा के अल्लाह की मेहरबानी से इधर से शुरू हुए हैं। और अब अल्लाह की मेहरबानी इतनी है कि इधर पाँव रखने की जगह नहीं होती, यानी इतने ज़ायरीन मैं आज सोच रहा था कि आज ये कम अज़ कम 1000 एक आदमी था नमाज़ पढ़ने के लिए आया था, मर्द औरतें। तो ये लोग उस टाइम क्या करते होंगे? ज़ाहिर है तो नमाज नहीं पढ़ सकते थे, वाशरूम नहीं थे, नमाज सहूलियत ही नहीं थी ना नमाज की। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की करमनवाजी हुई है हम पे खटक साहब। और मैं उन लोगों का, उन अपने दोस्तों का, मेहरबानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद की है। कम अज़ कम 35-40 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिए, किसी ने लाख दिए, किसी ने टन सरिया दिया, किसी ने 2 टन सरिया दिए, तो किसी ने सीमेंट दी है। बहुत हम उनके मशकूर ममनून हैं। अल्लाह पाक उनको इस चीज़ का अजर देगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक मेहरबानी करे हम पे भी, आप पे भी, जितने इधर ज़ायरीन आते हैं सखी के मानने वाले हैं। खटक साहब ये पाकिस्तान में बुलंद तरीन मस्जिद है, जिधर ना गाड़ी का रास्ता है और ना ही कोई लिफ्ट है। सब ये मटेरियल कोई उठा कर हम लोग लाए हैं। सरिया पहुंचाना तो बहुत मुश्किल था जी। तो आपने कैसे ये मैनेज किया है? और इस पे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आया होगा ज़ाहिर है, क्योंकि एक एक ईंट भी यहाँ बंदा अकेला पैदल चढ़ के नहीं पहुँच सकता। तो वो ईंटें और बाकी मटेरियल सरिया वगैरह वो यहाँ पहुँचाना उन सीढ़ियों के ज़रिए, जो तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी सीढ़ियाँ हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये खटक साहब, इसको जो रेत, क्रश और सीमेंट, ये 3 चीज़ें तो हम लेकर आए गधों पे। तकरीबन 16-17 लाख रुपए हमने उनको मजदूरी दी है। और उसके बाद जो सरिया, पाइप वगैरह थे, ये दरवाजे वगैरह, बाकी जितना सामान है ना, वो सब आवाम की मदद से, जो ज़ायरीन आते थे उनकी मिन्नत ज़रिए करके वो ले आते थे, जो रास्ते में फेंक देते थे, छोड़ देते थक जग के। तो फिर हम उसको शाम के टाइम इकट्ठा करके खुद मैं और गुलजेब खान इधर ऊपर पहुँचाते थे। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी शमशाद साहब। तो नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि ये कोई आसान काम नहीं था। एक ऐसी पहाड़ी जिस पे चढ़ने के लिए आपको पैदल चढ़ने में 1 घंटे से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और मुतवातर सीढ़ियाँ हैं चढ़ाई चढ़ते हुए। तो वहाँ पे आप सोचें कि इन्होंने वो सामान मटेरियल कैसे पहुँचाया होगा, और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। और दूसरा ये कि उन्होंने ये बहुत ही कम मुद्दत में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है, क्योंकि इनके दिल में जज्बा था। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब को, चौधरी साहब को, गुलजेब साहब को और बाकी इनके साथियों को इसका अजर दे। लाजमी इनको अल्लाह ताला इसका अजर देगा, क्योंकि उन्होंने एक सदका जारिया किया है। नाज़रीन, इस वक्त हम बैठक शरीफ पहाड़ी हज़रत सखी ज़िंदा पीर बाबा वली कंधारी हसन अब्दाल में मौजूद हैं, और यहाँ का जो लंगर खाना है उसके इंतज़ाम करने वाले मुंतज़िम जो हैं वो हबीब साहब और करामत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो इस लंगर की तारीख़ और इसकी हिस्ट्री के बारे में इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं दरबार इंतज़ामिया की तरफ से, करामत भाई और हबीब भाई की तरफ से, खटक भाई आपको और आपकी फ़ैमिली को बैठक शरीफ पहाड़ी हज़रत सखी ज़िंदा पीर सरकार पर खुशामदीद कहते हैं। और आपका आना और आपकी फ़ैमिली का आना मालिक की ज़ात अपनी बारगाह इल्म जज़ल के अंदर कबूल फरमाए। जैसा कि भाई आपने सवाल किया है कि लंगर का यहाँ पे कितने अरसे से सिस्टम चल रहा है, ये खटक भाई हम तकरीबन 1995 से लंगर का एहतमाम हो रहा है, लेकिन उस टाइम सिर्फ बुध के बुध लंगर होता था। ये हमने तकरीबन सन 2000 से भाई मोहम्मद असलम साहब, जिनकी वो सामने बैक साइड पे तस्वीर भी लगी हुई है, उनकी क़ियादत के अंदर 3 टाइम का हमने लंगर का सिस्टम शुरू किया है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अब सन 2021 भी शुरू हो चुका है। तकरीबन 21 साल बनते हैं ये हम 3 टाइम का लंगर मुखलिस फ़िल्लाह माज़ अल्लाह की रज़ा की खातिर मेहमानों के लिए बेलोस इधर खिदमत कर रहे हैं और लंगर का सिस्टम कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे लंगर हो रहा है। ये लंगर का जितना सेहरा और जितना सिस्टम है, ये हमारे भाई मोहम्मद असलम साहब मरहूम, उनके सर पे है। वो इस
तंजीम के और इस अंजमन के और इस लंगर के तमाम के बानी और सरपरस्त भी थे, जिनकी क़यादत के अंदर हम दोनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेहसन तरीके से 21 साल से 3 टाइम का ये हम लंगर का सिस्टम कर रहे हैं। और लंगर भी जितना भी हम सिस्टम कर रहे हैं ये हम अरसा दराज से ज़ायरीन के तावन से कर रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, क्योंकि दरबार शरीफ जो है बैठक शरीफ ये महकमा औक़ाफ़ के अंडर में है। महकमा औक़ाफ़ हमारे साथ इस लंगर के साथ ना जानी तौर पे कोई खिदमत कर रहा है ना माली तौर पे खिदमत कर रहा है। ये हम जितना प्रोसेस कर रहे हैं 3 टाइम का अल्हम्दुलिल्लाह लंगर है। बैरून से भी हमारे पास लोग आते हैं, ईदैन के हवाले से भी, ईद के हवाले से जो छोटी हुई और बड़ी ईद पे होती है, ये हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक डेली तकरीबन 15 से 20 हज़ार बंदे आते हैं। अच्छा, ये इतने ज़्यादा लोग आते हैं तो सिर्फ एक दिन पे इंतजाम कैसे करते हैं आपके साथ? ये ज़रूरी नहीं कि वो सारे लंगर ही खा के जाते हैं, लेकिन तकरीबन 2500-3 हज़ार बंदा लंगर खा के जाता है। हम वसी है तमाम करते हैं तकरीबन, ताकि वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक मुसलसल चलता रहे, ताकि आने वाले मेहमान के अलग में थोड़ा थोड़ा लंगर को, क्योंकि हर बंदे को लंगर की तलब होती है, वो कोशिश होती है उसकी ताकि सरकार चाय मिल जाए, लंगर मिल जाए, जो उसके नसीब में कुछ होता है। ऐसे ज़ायरीन भी आते हैं जो रात भी ठहरते हैं या फिर जाते हैं, या फिर ये सिर्फ दिन के वक्त ही? आने रात का भी हमारे पास सिस्टम है। सर्दियों में जो है ना हमारे पास रात को अवाम नहीं होती, हम चंद बंदी होते हैं या कद्दू का कोई मेहमान आ जाए। गर्मियों में हमारे पास जो है ना एक बुध का दिन जो हमारा एक मखसूस दिन है, हर बुध को हमारे पास एक छोटा सा उर्स होता है। ये हमारे पास गिरदो नवासे, फतेह जंग हो गया, पिंडी गेब हो गया, अटक हो गया, पिंडी हो गया, हरीपुर हो गया, ये हमारे पास रात को तकरीबन 200-250 लेडीज़ होती हैं, 300-400 तकरीबन जेंट्स होते हैं। क्योंकि दिन बुध का होता है, रात जो में रात की होती है, लोग वो ला और जगराता भी निकालते हैं, नवाफल वगैरह अदा करते हैं, और सुबह जो है ना वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि जुमरात का जो सुबह नमाज़ पढ़ते हैं वापस चले जाते हैं। तो कराम साहब आपसे भी तासुरात लेते हैं। खटक भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने खिदमत का मौका दिया और अल्लाह पाक आपको शान माद रखे। ये लंगर जो हमारा चल रहा है 3 टाइम का चल रहा है, दिन की दुआ हम जो नमाज के बाद करते हैं वो चलता रहता है 3:30 बजे 4 बजे तक हमारा लंगर चलता रहता है। इसके तो लंगर मैं ख़ुद तैयार करता हूँ। ये बैनुल-अक़वामी बैठक है, इस पर हिंदू सिख लोग भी आते हैं, उनके लिए भी हम लंगर का इंतज़ाम करते हैं। सिख ज़ायरीन भी आते जी, हैं। अभी बैसाखी मेला लगने लगा है, उस पर बैसाखी में 1 माह ये अप्रैल में, उन दिनों ज़्यादा आते होंगे? उस दिन में जी ज़्यादा आते हैं, सिक्योरिटी भी होती ये है होता है कि ज़्यादा। अब हालात नहीं है, क्योंकि अब आम पब्लिक का दाखिला वो बंद कर देते हैं। सिर्फ जो है ना वो बैरून से जो इंडिया से आए होते हैं या अमेरिका या कनाडा से आए होते हैं, उनके लिए वो इतनी सिक्योरिटी कर देते हैं कि फिर आम पब्लिक का दाखिला, जब वो वापस चले जाते हैं अपने पंजा साहब में पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद हम आम को खोल देते हैं, फिर वो आम आना शुरू हो जाती है। बाकी आवाम भी जो आती है, आज तकरीबन कम से कम 3000 बंदा होता 3000 आज है। जुम्मे का दिन आज था। जुम्मे का दिन था, सुबह। इसके ये अभी भी आप ऐसे- देख सकते हैं, उसमें तो हम ये आ समझोगे जाते हैं। आधे तो किसी ने लंगर खाया है, किसी ने चाय पी है, किसी ने कहवा पिया है, जो जो जिसके नसीब में था वो जो उसको मिलता रहा उसको जो है। माशाल्लाह बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं। मैं नाज़रीन, ये अल्लाह के बंदे हैं जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे, जो दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं, लंगर का बंदोबस्त करते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, कभी कभी ये तादाद हज़ारों में पहुँच जाती है, और यही 2 बंदों की टीम है जो इसको मैनेज कर रहे हैं। पकाते भी खुद हैं और सर्व भी खुद करते हैं लोगों को, और बहुत इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम से पेश आते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।